Good morning, dear kids. Today I am taking your exercise 6.4, problem number 2, which says find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculations. Means if you have 144, now you have to find that when you do the when you find out the square root of 144, how many digits will that square root consist of? For that first you have to जो भी आपको नंबर दिया हुआ है पहले number of digits उसके find कर दो. Are you getting my point? So your first number is 144. So how many number of digits it has? It has number of digits that are 3. 1, 2, 3. That means it has odd numbers. And when you have odd numbers digit जिसका आप square root find कर रहे हैं, in that case the square root will consist of, square root will have number of digits that will be n plus 1 upon 2. तो आपके स्क्वायर नंबर के पास 3 थे, सो योर स्क्वायर रूट विल कंसिस्ट ऑफ 3 plus 1 upon 2, that is 4 upon 2, that is 2 digits in the square root. Getting my point? Now my next number is 4481. So you have to see the number of digits. 4481. Count the number of digits, dear. So you have 4 digits in this. Now 4 is what? It is even number. Even number. In that case, square root will consist of just n upon 2 digits. That is 4 upon 2. That is 2 digits. ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो 3 नंबर के डिजिट था उसके स्क्वायर रूट में भी 2 डिजिट्स थे, जो 4 नंबर का डिजिट था नंबर था उसके स्क्वायर रूट में भी 2 डिजिट्स हैं. Your next is 27225. Now you can notice 1, 2, 3, 4, 5 numbers are there. So where it will go? We will use the formula for odd numbers. ठीक है, 5 ऑड नंबर है ना, तो 5 plus 1 upon 2 that is 6 upon 2 that is 3. तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे? 3 digits. Then you have next 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 6 is what? It is an even number. For even number what formula you will use? N upon 2 digit. So 6 upon 2 that is 3 digits. So this number's square root will consist of how many digits? It will consist of 3 digits. Are you getting my point clear? So your next is find the square root of the following decimal numbers. So the numbers are decimal. For finding square root of such numbers also we have two methods. One is long division method. जैसे हमने पहले numbers का long division method किया था, and another is your prime factorization method. I'll be teaching you both the methods. Let's see first long division method. In long division method I have said you that first you have to take pairing of the numbers. ठीक है, तो मैंने पीछे से पैरिंग कर दिया, 5 6 को एक पैर बना दिया और 2 के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो 2 को अकेले ही रहना देना. ठीक है, देन वी विल गो फॉर 2 के ऐसे कोई फैक्टर्स जिनके मल्टीप्लिकेशन से इधर 2 आ जाए या उससे कम आए, दैट फैक्टर शुड बी स्क्वायर. जैसे हमने कर दिया 1 into 1 1, 2 into 2 4. So I cannot use 2 into 2 4 because 4 is exceeding 2. So in that case I have to go for what? 1 into 1. So I'll take 1 ones are 1. तो जो नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते जाना है. सो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ गया 2, राइट हैंड साइड में आप जैसे नॉर्मल डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरह से करना है. दिस डेसिमल विच इज हियर यू हैव टू शिफ्ट हियर नाउ एंड दीज नंबर्स यू हैव टू टेक देम डाउन. नाउ 2 के साथ कुछ ऐसा डिजिट लगाओ जिसके मल्टीप्लिकेशन से उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो यू शुड गेट 156 और लेस देन दैट. सो लेट्स सी 2 के साथ हम कौन सा डिजिट लगाएंगे कि उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 156. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द लास्ट डिजिट. It is 6. So I can get it from 6 6 are 36. So in that case if I am multiplying 26 into 6 I am getting proper 156 if you notice. So I'll go for 2 के साथ 6. I'll put 6 here and I'll get 256 here. So subtraction here, 0 here. Now as I said you, आपको लेफ्ट हैंड साइड में जिसके साथ मल्टीप्लाई किया 26 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो you have to add and get this here. Clear with this? So my answer is what? 1.6. So what is square root of 2.56? It is 1.6. Got my point clear? I'll be teaching you one more method of prime factorization. Okay? In that what we will do, 2.56 ऐसा है. So हम लोग ये ऐसा लिख सकते हैं 256 upon 100
जैसे मैंने 256 अपॉन 100 लिया और इसका रूट निकालना है, तो 256 के फैक्टर्स निकाल दो, 100 के फैक्टर्स निकाल दो। जैसे हम प्राइम फैक्टर्स से 256 के निकालते हैं, 100 का तो 10 इंटू 10 है, ठीक है। 256 के भी निकाल लेते हैं। 2 1s are, 2 2s are, 2 8s are, 2 6 and 4, 2 3 and 6, 2 1 and 8, 2 9, 3 3 and 3 1. So I got the factors of 2 as 2, factors of 256 as 2 2, again 2, again 2, again 2, again 3 and 3. इसमें से बहुत कुछ आपका फ्री हो जाएगा, उन सब नंबर्स को फ्री करते जाओ। गेटिंग माई पॉइंट? सो यू विल नोटिस आपके सब 2 आपके फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे एक और 2 है, ये 3 है, तो सब आपके जो भी फ्री हो जाते हैं उनको फ्री करो और नीचे से 10 भी आपका एक फ्री हो जाएगा एंड देन यू हैव टू जस्ट पुट अप द डेसिमल। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज ऑल्सो वेरी बेसिक। क्लियर? Shall I take one more of this and then you can do on your own the remaining one? I'll take one more. Which shall I take it? Shall I take 51.84? Okay, I'll go for long division method of 51.84. Now you can see, as I said you have to form the pairs. 51 का कुछ ऐसा आपको नंबर्स का मल्टीप्लाई करने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से 51 से कम आए। ओके, सो शैल आई गो फॉर 7 into 7? I'll get 49 which is less than 51. So I'll get 49 here. जैसे मैं सब्ट्रैक्शन करती हूँ, I'll do the subtraction and here मैंने आपको बताया था कि ऐड करना है, तो 7 + 7 14. Now take this decimal up and take these numbers down. 284, तो 14 के साथ कोई ऐसा डिजिट जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 284 या उससे कम आ जाए, तो I'll go for 2. So I'll get 284 exactly. So 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, जिसको मल्टीप्लाई किया वो ऐड भी करना है, तो I will add it here. जिससे मल्टीप्लाई किया मैं ऊपर लिख भी रही हूँ. So 284 subtraction 0 and here 144. So what is my answer? 7.2. Okay dear kids, can you do the rest of the problem? Shall I take next? Okay. Next is find the least number which must be subtracted from each of the following numbers. So to get a perfect square, also find the square root of the perfect square so obtained. मतलब क्या कहा है कि 402 itself आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा जिसको आपको उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है. लेट्स सी हाउ वी हैव टू डू. 402 is the number, so I'll follow my long division. And as I said you, pairing is the must. So I'll go for 2. 2s are 4. I'll take this 2 down. Getting my point? So this is 4. 4 के साथ ऐसा कोई नंबर जिसके ऐसा कोई डिजिट हम लोग ऐड करेंगे 4 के साथ और उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट के साथ ताकि 2 आ जाए. नाउ 2 इज फार लेस देन 4. 4 के साथ कोई भी नंबर आप 4 के साथ 0 लगा दो तो ही 0 आएगा, लेकिन 4 के साथ 1 लगा दोगे तो 41 विच इज ग्रेटर देन 2. आई कैन नॉट यूज दिस, सो आई बेटर गो फॉर zeros are 0. So my remainder is what? My remainder is 2. Now in that case what I will do, this is the remainder, इससे further division हो ही नहीं सकता है. So this is the remainder. Now आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Find the least number which must be subtracted. ये जो remainder बचता है ये आपको ओरिजिनल नंबर में से subtract करना है. What is the original number? 402. 402 में से आपको remainder 2 subtract करना है. So what will be the remaining आफ्टर सब्ट्रैक्शन? क्या बचेगा? 400. जो आपका अभी 400 हुआ ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. अब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल दो 400 का, चाहे तो डिवीजन मेथड से निकालो चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो. ओके, सो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग निकालेंगे. 2 2s are 4. ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ये हो गया यहाँ पे एडिशन, ये आ गया यहाँ पे 20. ठीक है, सो माई आंसर इज परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 0 आपका रिमाइंडर हो गया. जब भी आपका रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम नंबर. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है मतलब आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. इन दैट केस जो रिमाइंडर आ रहा है वो ही आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो 402 में से आपको वो 2 सब्ट्रैक्ट करना है. सो विच इज द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड? 2 शुड बी सब्ट्रैक्टेड. और 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल दो. क्लियर? I'll take one more. Shall I go for 3250 and the remaining ones you can do it? I'll go for 3250.
Okay, let's go for 3250. Let's see this is a perfect square or not. I'll go for table of 5. 5s are 25 because if I take 6 that will be greater. So I'll add here. So it will be 10 on this side and here I'll subtract. It will be 7. I'll take 5 and 0 together because वो pairing में है. Okay, then 10 के साथ कोई ऐसा digit जिसके multiplication से 750 आए. तो naturally मैं 7 के साथ multiply करूँगी. तो I'll get 749 which is less than 750. I can apply 7 के साथ multiply किया. I got 749 and my remainder is 1. जिसके साथ multiply किया उसको add भी करना है. So it is 114. Now as you can see the remainder is 1. So what I will say, 1 should be subtracted from your 3250 to make it a perfect square. अब आप 1 को subtract कर दो तो 3249. अब 3249 का आप perfect square निकालो. Getting my point clear? 3249 का perfect square आप निकालेंगे तो वो 57 ही आएगा. ठीक है, पेयरिंग आपने कर दी. वही प्रोसीजर से आपको 5 5s are 25 एंड 749. यहाँ पे आप गया 10 के साथ 7 लगा दिया. 749 आता है एंड माइनस किया 0. यहाँ पे ऐड किया 114. So you got the perfect square, you got your remainder 0. Clear with this? Okay. Shall I take my next problem? So you have to finish off the remaining one. Okay, next is find the least number which must be added to the number so as to get a perfect square and also find the square root of the perfect square obtained. अब पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था कि आपको सब्ट्रैक्ट करना था. अब इस वाले प्रॉब्लम में क्या है कि आपको ऐड करना है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए. तो देखते हैं अपना प्रॉब्लम नंबर 1 विच सेज 525. चलो हम लोग देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है. मैंने पेयरिंग कर दिया. 2 की टेबल में 2 2s are 4 because that is less than 5. I can take that. On the left hand side I am adding and I am taking 2 5 together down. Now I'll again take 4 के साथ कोई ऐसा digit जो उसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो I'll get 125 or less than that. 4 के साथ 3 लगाना है. 3 3s are 9, 4 3s are 12. वो ज़्यादा हो जाता है. 129 हो रहा है. तो I will go for 2. So that will be 84. So I'll go for 2 here and here also 2. I will add here 2 because जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऐड करते हैं. I got 84. And what is my remainder? My remainder is 41. अब इसके आगे आप देखेंगे 44 के साथ आप कोई भी डिजिट ऐड नहीं कर सकते कि आपको 41 आए. कोई भी डिजिट आप 44 के साथ लगा लो, उसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे उसी डिजिट के साथ तो यू विल गेट मोर नंबर. यू विल नॉट गेट लेस नंबर देन 41. ठीक है, तो इन दैट केस फर्दर डिविजन इज नॉट पॉसिबल. अब क्या करना है? अब अगर ये सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम होता कि विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो हम 41 को सब्ट्रैक्ट कर देते 525 के साथ. करेक्ट. लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि विच लीस्ट नंबर शुड बी एडेड. इन दैट केस क्या करेंगे अभी? यस डियर किड्स, हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आपका क्वोशंट आया है इसका नेक्स्ट नंबर दैट इज 22 आपका आया है. इसका नेक्स्ट नंबर विल बी व्हाट? 23. और 23 का आपको स्क्वायर ले लेना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? तो 23 का आप स्क्वायर ले लो. तो 23 इंटू 23 कर लो. 23 इंटू 23. 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 2s are 6 and 4. So that will be 529. Are you getting my point? अब 529 अपने जो मेन नंबर है 525 और 529 में क्या डिफरेंस है? 4. So 4 should be added to the number to make it a perfect square. आ रही बात समझ में? तो आपने क्या किया, पहले आपने नॉर्मल डिवीजन मेथड से सॉल्व किया, उसमें आपका रिमाइंडर बचा, तो ये समझ में आ गया कि 525 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इन दैट केस अब इसमें क्या मैं ऐड करूं ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो मेरा क्वेश्चन जो आया है 22, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट नंबर है मैं वो ले लूंगी. तो नेक्स्ट नंबर है 23, उसका स्क्वायर फाइंड करूंगी. तो 23 का मैंने स्क्वायर फाइंड किया 529. ठीक है ना, और उसको अपने डिविडेंड के साथ कंपेयर करूंगी, मतलब 525 के साथ कंपेयर करूंगी. और कितने एक्स्ट्रा नंबर्स उसको चाहिए?
खुद 525 है और 529 अगर उसको बनना है तो उसको 4 और नंबर्स चाहिए, तो 4 नंबर शुड बी एडेड. व्हाट शुड बी एडेड? विच लेस नंबर शुड बी एडेड? नंबर 4 शुड बी एडेड. 4 शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो ये 529 आपका स्क्वायर नंबर बन जाएगा. और फिर आप 529 का चाहे तो स्क्वायर रूट निकाल के देखो, इट विल बी 23. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं. 6412 ले लूँ? ओके, 6412 लेते हैं. लेट्स सी व्हाट आंसर वी आर गेटिंग. 6412 डिवीजन मेथड से करेंगे. कर दिया ये हम लोग ने पेयरिंग. नेचुरली 8 के साथ जाएंगे तो आई विल गेट 8 8 ज़ा 64. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 1 2 साथ में नीचे लेकर आए, यहाँ पे 8 और 8 ऐड कर दिया 16. 16 के साथ ऐसा कोई नंबर जिससे 12 आए? नहीं, तो 16 के साथ आप एक 0 ही डाल सकते हो, जिसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आंसर आएगा. क्योंकि अगर आपने 116 के साथ 1 डिजिट डाल दिया और 1 से मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी 161 विच इज फार ग्रेटर देन 12. सो इन दैट केस आई विल बेटर पुट 0. सो आई विल गेट व्हाट? 0 and the remainder is 12. ओके, ठीक है. अब रिमाइंडर 12 है, मतलब ये जो 6412 हमारा नंबर है, दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर. अब स्टेप नंबर 2 मैंने क्या कहा था, जो आपका क्वोशिएंट आया है इसका नेक्स्ट नंबर ले लो. तो नेक्स्ट नंबर है 81. 81 का आप निकाल दो स्क्वायर. गेटिंग माय पॉइंट? 81 का जैसे आप स्क्वायर निकालोगे, जो नंबर आएगा उसको आपको कंपेयर करना है 6412 के साथ. ठीक है, और जितना नंबर आपका आ रहा है वो आपको ऐड करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितना डिफरेंस आ रहा है 81 का आप स्क्वायर कर दो. सी 81 का स्क्वायर कर दो, तो ये आया 6561. ठीक है, अब 6561 अपने मेन नंबर 6421 के साथ कंपेयर कर लो. So what is the difference? The difference is 141. Am I correct with this? वो डिफरेंस अपने इसमें ऐड कर दो. दिस इज़ नॉट 21, दिस इज़ 12. बाय मिस्टेक मैंने 21 ले लिया यहाँ पे. 6412 है, 6412 है, तो द डिफरेंस विल बी 149. और 149 विल बी द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड. जब आपका सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन बहुत ही ईजी है क्योंकि जो भी रिमाइंडर बचता है एट द लास्ट दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम योर मेन नंबर. बट एडिशन में आपके क्वोशिएंट का नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर लेना है और अपने डिविडेंड के साथ कंपेयर करना है. ठीक है, जितना डिफरेंस आएगा दैट इज द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड. क्लियर विद दिस?